السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام عامر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انوریکس کمپنی کے 180 واٹ والے مونو پرک ٹیکنالوجی والے 4 عدد سولر پینلز، انوریکس کمپنی کی ہی ویرون سیریز کے ایک پیور سائن ویو MPPT بیسڈ 1.2 کلو واٹ کے سولر انورٹر اور فنیکس کمپنی کی ٹال ٹیوبلر سیریز کی ایک 230 امپیئر آور والی بیٹری کی مدد سے ایک 1.2 کلو واٹ کے سولر سسٹم کو انسٹال کرنے کی جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ 1.2 کلو واٹ کا سولر سسٹم پیارے دوستو ایک سمپل 1000 واٹ کا سولر سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ عموماً ایک چھوٹی فیملی کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ فرض کر لیں ایک چھوٹی فیملی ہے جس کے پاس ٹوٹل 2 سے 3 پنکھے ہیں، اس کے علاوہ ایک عدد ان کے پاس کمپیوٹر یا LED ٹی وی ہے، اسی طرح سے گھر کا تمام لائٹنگ لوڈ ہے، یا پھر اس کے علاوہ ایک بہت چھوٹے سائز کا ریفریجریٹر ہے، تو اس کے لیے عموماً جو ہے وہ 1.2 کلو واٹ کا سولر سیٹ اپ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اب ویسے تو یہ ایک چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے، 1000 واٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو کسی بھی جگہ پہ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم بجٹ کے اندر جو ہے وہ انسٹال کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے جتنا بھی کریں، جہاں بھی کریں، جو بھی کریں، سیفٹی اور الیکٹریکل کے قوانین کا فالو کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، جس طریقے سے ایک 5 کلو واٹ یا پھر 3 کلو واٹ کے سولر سسٹم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، سیم ٹو سیم اسی پیٹرن کے اوپر میں آپ کو آج یہ 1.2 کلو واٹ کے سولر سسٹم کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ اور اس سسٹم کی انسٹالیشن میں پیارے دوستو آج میں کچھ نئے ششکے، تھوڑی سی کسٹمائزیشن ایڈ کرنے والا ہوں۔ میں اس کے اندر استعمال کروں گا کچھ پروگرامبل ٹائم سوئچنگ ڈیوائسز کا، اور ان کا بھی جو استعمال ہے وہ میں ایک ڈفرنٹ وے میں کرنے والا ہوں، آج سے پہلے شاید کسی نے نہیں کی ہوں گی۔ میں نے خود بھی ایکسپیریمنٹ پہلے کبھی نہیں کیا، کیونکہ اکثر دوست یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس سولر سسٹم تو انسٹالڈ ہے گھر کے اندر، لیکن اس سے ان کے بل میں کوئی واضح فرق نہیں محسوس ہو رہا۔ تو آخر سولر اور واپٹا کا کیا کمبینیشن بنایا جائے اور ان ڈیوائسز کی آپس میں کیسے سوئچنگ کرائی جائے کہ ہمیں ان کیس آف لوڈ شیڈنگ بیٹری سے بیک اپ بھی پراپر ملتا رہے، اور سولر سسٹم سے چاہے وہ 1000 واٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بجلی کے بل میں بھی تھوڑا سا واضح فرق محسوس ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پیارے دوستوں میں ان ساری چیزوں کا خلاصہ کرنے والا ہوں۔ آپ نے یہ ویڈیو آج شروع سے آخر تک پوری دیکھنی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ تو جناب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی سولر پینلز کی، PV پینلز کی۔ تو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہاں پر ہم استعمال کرنے والے ہیں 180 واٹ والے 4 عدد سولر پینلز جو کہ انوریکس کمپنی کے ہیں اور مونو پرک ٹیکنالوجی کے اندر ہیں۔ اب ویسے تو 1.2 کلو واٹ کا جو سولر سیٹ اپ ہوتا ہے پیارے دوستو، اس کے اندر ہم میکسیمم 6 عدد جو سولر پینلز ہیں 150 یا 180 واٹ والے، یعنی کہ 1000 واٹ تک کے سولر پینلز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کے اوپر لوڈ کی ریکوائرمنٹ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم صرف 180 واٹ کے 4 عدد سولر پینلز کا استعمال کریں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چاروں سولر پینلز ہیں یہ یہاں پر پہلے سے انسٹالڈ ہیں، اور یہاں پر پہلے سے ایک سیٹ اپ لگا ہوا تھا جو کہ کوئی 300 واٹ کے آس پاس تھا، لیکن اس سیٹ اپ کے اندر پرابلم یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو انورٹر لگا ہوا تھا، جو UPS لگا ہوا تھا، وہ ہوم ایج کمپنی کا تھا اور PWM چارج کنٹرولر کے ساتھ تھا۔ اور PWM چارج کنٹرولر کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ میکسیمم 40 سے 50% ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو 180 واٹ کے چاروں سولر پینلز ہیں یہ اب ویسے تو 720 واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی بنتی ہے، لیکن یہ چاروں مل کے جو ہے وہ ٹوٹل 250 واٹ جنریٹ کر رہے تھے، جسٹ بیکاز آف دی ٹیکنالوجی آف دیٹ سولر انورٹر جو کہ PWM تھی۔ تو اسی لیے اس کو ہم ریپلیس کریں گے پیارے دوستو انہی سولر پینلز کے سیٹ اپ کے ساتھ ویرون 1.2 کلو واٹ کے سولر انورٹر کے ذریعے، جو کہ ایک پیور سائن ویو انورٹر بھی ہے اور ساتھ میں MPPT بھی ہے۔ تو اس سے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جو 700 واٹ کے پینلز پہلے 250 واٹ جنریٹ کر کے دے رہے تھے، اب وہ ہو سکتا ہے کہ 500 واٹ سے زیادہ پروڈکشن پرووائڈ کریں۔ تو یہ جو چاروں سولر پینلز ہیں پیارے دوستو 180 واٹ کے 4، یہ 2 عدد L2 سٹینڈز کی مدد سے جو ہے وہ چھت پہ پہلے سے ماؤنٹ ہیں۔ ان کو ہم نے کس طرح سے چھت کے اوپر جو ہے وہ فکس کرنا ہے، اس کی ویڈیو میں پہلے ہی جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل کے اوپر۔ تو ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ آلریڈی ساؤتھ کی جانب ہے، ان کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جسٹ ان کی جو وائرنگ ہے اس کو تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی سولر انورٹر کی۔ تو اس سولر سیٹ اپ کے اندر پیارے دوستوں میں استعمال کرنے والا ہوں انوریکس کی ویرون سیریز کا ایک 1.2 کلو واٹ کا یعنی کہ 1200 واٹ کا سولر انورٹر، اور یہ اس وقت 1.2 کلو واٹ کیٹیگری میں مارکیٹ میں ایک ٹاپ آف دی لائن انورٹر ہے، یعنی کہ یہ پیور سائن ویو بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو چارج کنٹرولر ہے وہ MPPT ہے، اور یہ 5 سال کی وارنٹی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ 4.3 انچ کی کیپیسٹیو ٹچ
LCD है, और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन के ये वाईफाई बॉक्स के जरिए जो है वो आपका इंटरनेट के थ्रू भी इन कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा आप इसको पीसी के साथ इंटरफेस करके भी जो है वो इसकी सारी जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। इस वेरॉन 1.2 की सारी डिटेल के ऊपर प्यारे दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको इस सोलर इन्वर्टर की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए तो फिर उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो सोलर इन्वर्टर है जी 1.2 किलोवाट का, इसके साथ यहाँ पर आप इसकी डाटा शीट के थ्रू देख सकते हैं। इसके साथ वैसे हम 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, यानी कि 150 वाट वाले 6 पैनल भी लगा सकते हैं, 250 वाट वाले 4 भी लगा सकते हैं, 350 वाले 3 भी लगा सकते हैं, और 500 वाट वाले 2 अदर सोलर पैनल्स भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर लोड की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर 180 वाट के जो पैनल्स अवेलेबल है मेरे पास, वो मैं सिर्फ 4 अदद जो है वो इसके साथ इस्तेमाल करूंगा। इन फ्यूचर अगर मुझे मजीद जरूरत पड़ती है तो मैं मजीद 180 वाट या 150 वाट के 2 अदर सोलर पैनल्स को इस सिस्टम के अंदर मजीद ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद ये है जी वो जगह जहाँ पे हमने इस 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम का जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, इन्वर्टर और बैटरी वगैरह को रखना है। तो यहाँ पर पहले दूसरा सिस्टम लगा हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर को जो है वो रिमूव कर दिया है जो पुराना इन्वर्टर था, और यहाँ पे एक नई सेटिंग बनाई है एक नए अंदाज में, जहाँ पे हम ये अपना नया जो इन्वर्टर है उसको हैंग करेंगे। इसके जो सुराख वगैरह हैं हैंग करने के लिए जो मार्किंग है वो मैंने कर लिया है, और यहाँ पर नीचे जो है ये हमारी बैटरी आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप जी हम ये करते हैं कि जो हमारा सोलर इन्वर्टर है इसको मार्किंग पॉइंट्स के ऊपर जो है वो दीवार के साथ हम हैंग कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसकी जो बेस है यानी कि जो दीवार वाली साइड है उसको भी दीवार के ऊपर माउंट कर लेते हैं। उसके बाद जी अब बारी है इस सोलर सेटअप की वायरिंग करने की। तो ये वाला जो स्टेप है ये आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। लेकिन उससे पहले जी मैं आपको कुछ वायरिंग एसेसरीज, कुछ कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में बताता हूं जो कि मैंने इस 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करनी है। जिनमें से सबसे पहले नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं ये है जी एक रोटरी चेंज ओवर स्विच, जिसकी मदद से हम मैनुअली वापटा टू सोलर और सोलर टू वापटा की स्विचिंग करते हैं। ये ध्यान में रखिए मैं मैनुअली का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक जो है वो इन्वर्टर खुद करता है। उसके साथ ये एक अदद एसी वोल्ट मीटर है जो कि हमें जो आउटपुट पे वोल्टेज आएंगे उसकी मेजरमेंट देगा। उसके साथ ये एक अदद हम डीसी ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे जो कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होगा। उसके साथ ये एक अदद वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस हम हमेशा जो है वो अपने सोलर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रिड यानी कि वापटा या के इलेक्ट्रिक जो भी है उससे आने वाली जो सर्ज है उनसे इन्वर्टर को महफूज रखता है। उसके बाद ये 10 एम्पेयर का एक अदद सिंगल पोल एसी ब्रेकर जो है ये आउटपुट के ऊपर हम स्विचिंग और सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे प्यारी चीज और सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम की चीज प्यारे दोस्तों ये है ये प्रोग्रामेबल टाइम स्विच, जिसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब इसका यहाँ पर क्या फंक्शन होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले ये करते हैं कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं इन सब को मैं अपना जो सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो डीवी बॉक्स है, उसके अंदर प्लेस कर देता हूं। तो जनाब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल पैनल है, इसकी जो वायरिंग है वो ऑलमोस्ट अपने इख्तितामी मराहिल के अंदर जो है वो दाखिल होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी जो वायर्स हैं इन सब को मैंने कोशिश की है कि डक्ट्स के अंदर जो है वो इनकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर दी जाए ताकि खूबसूरती और नफासत का जो म्यार है वो कायम रह सके। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो ये जो हमारे पास इन्वेरेक्स का इन्वर्टर है वेरॉन 1.2 किलोवाट का, इसके अंदर यहाँ पर ये जो वापटा यानी कि ग्रिड की सप्लाई को कनेक्ट करने का ऑप्शन है वो पावर केबल की शक्ल में मौजूद है, यानी कि ये वैसे भी ऑप्शनल होता है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट करना है। तो इस पावर केबल के लिए मैंने आप देख सकते हैं कि अलग से इधर नीचे एक अदद लाइट प्लग जो है वो लगा दिया है, और इस डक के अंदर से सुराख करके इस पावर केबल को मैं यहाँ से जरूरत पड़ने पे जो है वो रिमूव भी कर सकता हूँ और इसको दोबारा से यहाँ पर लगा भी सकता हूँ। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों इस पूरे सेटअप के अंदर आपको ये जितनी भी एक्सेसरीज और डिवाइसेज नजर आ रही हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर ये एक अदद ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी नजर आ रहा है। अब इसका अचानक से क्या शान नजूल है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मिलकर हमारे इस 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या रोल परफॉर्म करने वाली हैं इनके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। अब बस इस पूरे सिस्टम की वायरिंग में हमारी एक चीज रह गई है, ये जो नीचे 2 अदद तारें आपको नजर आ रही हैं इनके ऊपर जो है वो हम 2 अदद थिम्बल्स लगाकर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर हम अपनी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा ये जो सिस्टम है इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब उससे अगला स्टेप ये है जनाब के ये जो सोलर पैनल्स है हमारे पास 4 अदद 180 वाट के, इनको हमने आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि इनके कनेक्शन करने हैं, इनकी वायरिंग करनी है। और इनके आपस में कनेक्शन करने के लिए प्यारे दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा ये कुछ दवाइयां, ये ट्रीना सोलर की ब्रांडिंग वाले
MC4 कनेक्टर्स हैं, इनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। वैसे तो हर एक सोलर पैनल के साथ MC4 कनेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए आते हैं, लेकिन इन सोलर पैनल्स के साथ से MC4 कनेक्टर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए थे कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस की वजह से। तो अब मैं ये ट्रीना सोलर के जो है वो आपको दिखाता हूं। MC4 कनेक्टर कहते हैं जी इस चीज को। इसके अंदर बेसिकली ये एक मेल और एक फीमेल जो है वो पेयर होता है। तो इन तमाम कनेक्टर्स को मैं पैनल्स के साथ अटैच कर लेता हूं। तो अब MC4 कनेक्टर्स लगाने के बाद जी बारी है इन चारों सोलर पैनल्स के आपस में कनेक्शंस करने की, इनकी वायरिंग करने की। तो इसके लिए प्यारे दोस्तों एक ही जो उसूल है या एक ही फार्मूला है वो फॉलो किया जाता है, जो कि आपने ज़हन में रखना होता है कि जब भी हम सोलर पैनल्स के आपस में कनेक्शंस करते हैं तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर सोलर इन्वर्टर की MPPT वोल्टेज रेंज को फॉलो करना होता है जिसके साथ हम उन सोलर पैनल्स को अटैच कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे केस में अभी जो मैं सोलर इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ जी वो है वेरॉन 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, जिसकी MPPT वोल्टेज रेंज 15 वोल्ट DC से लेकर 80 वोल्ट DC के दरमियान है। यानी कि ये जो 180 वाट के 4 सोलर पैनल्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन चारों का मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, इन चारों की आपस में वायरिंग मैंने कुछ इस तरीके से करनी है कि मिनिमम जो वोल्टेज है वो 15 रहें और मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 80 वोल्ट रहें। तो अब यहाँ पर इन चारों सोलर पैनल्स को कनेक्ट हम इस तरीके से करेंगे कि हम दो सोलर पैनल्स की जो है वो स्ट्रिंग बनाएंगे इन वायर कनेक्टर्स की मदद से, जो कि आपको यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं मेरे हाथ में। इस तरह से ओवरऑल जो हमारे पास वोल्टेज बनेंगे जी वो तकरीबन 40 वोल्ट बनेंगे और जो करंट आएगी दोनों स्ट्रिंग्स की मजमूई तौर पर वो तकरीबन 16 से 18 एम्पेयर DC के दरमियान आएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक सप्लाई आ रही है हमारी स्ट्रिंग नंबर 1 की, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो दूसरी सप्लाई आ रही है ये हमारी इन दो सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग की, यानी कि स्ट्रिंग नंबर 2 की। अब हमने ये करना है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है इन वायर कनेक्टर्स की मदद से, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसका तरीका ये होगा कि एक स्ट्रिंग का पॉजिटिव और दूसरी स्ट्रिंग का पॉजिटिव दोनों इस कनेक्टर की मदद से एक जगह पे जमा हो जाएंगे और इस तरीके से अब ये टोटल जो है हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। और इसी तरह से दोनों जो नेगेटिव हैं दोनों स्ट्रिंग्स के वो एक जगह पे कंबाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब ये टोटल हमारे पास आ गया जी नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो टोटल सप्लाई है जी दोनों स्ट्रिंग्स की, ये अब इन वायर्स के जरिए जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे जा रही है दूसरी दुनिया में, यानी कि सोलर इन्वर्टर की जानिब। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे इस 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अब लग कर तैयार हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग से, इसकी खूबसूरती से और इसकी नफासत से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो काफी मेहनत हुई है। इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स और एसेसरीज हैं और जो पूरी डक्टिंग है और जो उसकी वायरिंग है वो प्रॉपर एक वे में है। आपको तारों के हार बने हुए नजर नहीं आ रहे। अगरचे ये एक बहुत ही छोटा सोलर सिस्टम है, 1000 वाट का है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसकी इंस्टॉलेशन में एक प्रोफेशनल लुक नजर आनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस सोलर सिस्टम को टेस्ट करने से पहले और इसके ऊपर लोड डालने से पहले मैं आपको ये जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं इनका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेंगी यहाँ पर और इनका यहाँ पर क्या काम है। अब सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं तो मोस्ट राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा सोलर इन्वर्टर है ऑब्वियसली। उसके साथ ये एक अदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर स्विचिंग एंड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं, और उसके साथ ये एक अदद मैंने इस्तेमाल किया है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो कि बेसिकली एक मैग्नेटिक स्विच होता है जो कि हाई करंट के ऊपर स्विचिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक अदद मैंने रोटरी चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल किया है, जिसका काम यह है कि मैनुअली अगर आप वाप्टा टू सोलर और सोलर टू वाप्टा स्विचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। उसके साथ ये एक अदद वोल्ट मीटर है जो कि हमारा जो वोल्टेज आ रहे होंगे उनकी जो है वो मेजरमेंट हमें डिस्प्ले करेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है एक अदद ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि करंट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर और वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। और इस प्रोटेक्शन डिवाइस को मैंने इस्तेमाल किया है अपने सोलर इन्वर्टर की जो ग्रिड की इनपुट है, यानी कि वाप्टा इनपुट। और इसका मकसद यहाँ पर यह होता है कि अगर कभी वाप्टा से खुदा ना खास्ता कोई सर जाती है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इन्वर्टर में वो सर जाने से रोक देगा और वोल्टेज को जो है वो ऑफ कर देगा। तो ये एक अदद वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। उसके साथ ये एक अदद हमने डीसी ब्रेकर लगाया है जो कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर
इन्वर्टर के दरमियान में है, और इसी तरह से ये वाला एक अदद सिंगल पोल 10 एम्पेयर का जो है वो एसी ब्रेकर है। यहाँ पर ये जो चीज है प्यारे दोस्तों, ये है एक प्रोग्रामेबल टाइम स्विच, और इसका यहाँ पर काम ये है कि इसको मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ। इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को अगर आप कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ये जस्ट एक मैग्नेटिक स्विच है जो कि हाई करंट के ऊपर काम करता है। इसकी कॉइल को जब हम सप्लाई देते हैं तो ये अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको मेक और ब्रेक करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है प्यारे दोस्तों कि आखिर इस प्रोग्रामेबल टाइम स्विच और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया है। तो इसका एक जो जवाब आपके ज़हन में आ रहा होगा वो ये, और अमूमन ऐसा करते भी हैं लोग बड़े सिस्टम के अंदर, यानी कि 3 किलोवाट 5 किलोवाट, और उसमें ये होता है कि जो हमारे सोलर इन्वर्टर होते हैं इनके अंदर पाकिस्तान में ये जो इन्वर्टर आ रहे हैं इनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब आप इसके साथ वाप्टा को एक बार कनेक्ट कर देते हैं, ग्रिड की सप्लाई को जोड़ देते हैं, तो बेशक सोलर चाहे जितना मर्जी अवेलेबल हो, ये फिर भी वाप्टा से कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत एनर्जी जो है वो लेते रहते हैं, थोड़ी बहुत पावर ड्रॉ करते रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? शायद इसके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, या फिर जो भी वजह है मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो में बहस कर चुका हूं। लेकिन उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप इस टाइम स्विचिंग डिवाइस की मदद से जो है वो वाप्टा की इनपुट को कंट्रोल कर लें कि सुबह 8 या 9 बजे जो है वो वाप्टा इनपुट को ये टाइम स्विचिंग डिवाइस इन्वर्टर में जाने से रोक देगी, बंद कर देगी, और जैसे ही शाम होगी 4 या 5 बजे या जो भी टाइम आप सेट करें उस वक्त फिर से जो है वो वाप्टा को दोबारा से अनेबल कर देगी। यूं जो सोलर का पीरियड है इसके अंदर आपकी वाप्टा की जो सप्लाई है वो बिल्कुल भी इन्वर्टर में नहीं जाएगी, और इस तरह से आपके बिजली के बिल में बचत होगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है प्यारे दोस्तों ये छोटे सिस्टम्स के अंदर जो कि 1000 वाट या 2000 वाट या फिर जो बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि इनके अंदर अगर आप वाप्टा को जाने से रोक देते हैं, यानी कि वाप्टा को बंद कर देते हैं दिन के टाइम मुकम्मल, तो फिर आपकी बैटरी जो है वो दिन को जो है वो चार्ज नहीं हो पाती, और रात को अगर लोड शेडिंग हो जाए तो फिर मुकम्मल लोड ऑफ हो जाता है। तो इसका यहां पर सोल्यूशन ये निकाला है प्यारे दोस्तों मैंने, कि बजाय इस प्रोग्रामेबल टाइम स्विच की मदद से वाप्टा की इनपुट को कंट्रोल करने के, मैंने इससे यहां पर कंट्रोल की है जी इसकी सोलर की इनपुट। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों के जो सोलर पैनल से जो सप्लाई आ रही है इन्वर्टर्स में उसको मैंने कनेक्ट किया है इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर, और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है इसको मैंने कंट्रोल किया है इस प्रोग्रामेबल टाइम स्विच की मदद से। तो अब आप पूछेंगे भाई वाप्टा के बजाय सोलर इनपुट कंट्रोल करा के तुमने क्या खास काम कर लिया, इससे क्या होगा? तो इसका जवाब अब आपने गौर से सुनना है। वजह यह है जी कि ये जो 1.2 और 2.2 किलोवाट के जो सोलर इन्वर्टर होते हैं, जो छोटे इन्वर्टर होते हैं, ये होते हैं बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर, जिसका मतलब यह है कि ये वाप्टा के साथ रियल टाइम शेयरिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सोलर के साथ बैटरी की मिक्सिंग करते हैं, यानी कि एट ए टाइम आप सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से लोड चला सकते हैं। सोलर और वाप्टा के कॉम्बिनेशन से इन सोलर इन्वर्टर्स के साथ आप लोड नहीं चला सकते। तो अब होता क्या है कि सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी हल्की हल्की निकलती है, यानी कि सूरज तुलू होता है, तो उस वक्त जैसे सुबह 5 बजे आजकल सूरज निकल रहा है, तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है ये सूरज की धूप की जो इंटेंसिटी होती है, जो उसमें पावर होती है, वो बहुत कम होती है। तो उस टाइम पे ये जो 3 से 4 घंटे का टाइम पीरियड है दोस्तों, इस दौरान अब चूंकि सोलर की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती और लोड ने तो चलना होता है, पंखे चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये इन्वर्टर फिर बैटरी से जो है वो पावर लेना शुरू कर देता है, और सुबह होते साथ ही समझें कि 3 से 4 घंटे में बैटरी को ये आधी कंज्यूम कर लेता है। फिर उसके बाद शाम को आपको पता है कि 4 बजे के बाद भी सूरज की रोशनी ठंडी हो जाती है, और फिर सूरज जाके कहीं 7 बजे गुरूब होता है। तो ये जो शाम को 4 से 7 बजे का टाइम पीरियड है, इस दौरान भी हमें सोलर की एनर्जी में इतनी इंटेंसिटी नहीं मिलती, उस टाइम पे भी हमारी बैटरी जो है वो कंज्यूम हो रही होती है। तो नतीजा ये निकलता है कि जब शाम को सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाता है, तो उस वक्त चूंकि हम बैटरी सारी कंज्यूम कर चुके होते हैं, तो रात को जो है वो अगर अचानक लाइट चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, तो बैटरी में चूंकि पावर नहीं होती, तो इसलिए हमारा सारा का सारा जो बैकअप है वो खत्म हो जाता है। तो अब इसका हल मैंने ये निकाला है कि सोलर इन्वर्टर को कैसे पता चलता है कि भाई सूरज निकल आया है या सूरज गुरूब हो गया है। और इसको ऐसे पता चलता है जी कि इसकी स्क्रीन के ऊपर आप अगर देखें गौर से, तो ये छोटा सा एक सोलर का साइन आ रहा होता है। जब ये सोलर का साइन आता है तो इसको पता चल जाता है बस सूरज आ गया, और जब ये चला जाता है यानी कि सूरज गुरूब हो जाता है, मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, तो फिर इसको पता चलता है कि भाई सूरज गुरूब हो गया। तो अब सुबह जब 5 बजे सोलर का साइन आ जाता है तो इसने समझना है कि सूरज तुलू हो गया है, अब मैंने सोलर और बैटरी की मिक्सिंग करनी है। लेकिन मैंने यहां पर यह किया है प्यारे दोस्तों कि मैंने इस प्रोग्रामेबल टाइम स्विच की मदद से सूरज के तुलू होने का टाइम और सूरज के गुरूब होने का टाइम अपनी मर्जी से सेट कर दिया है, यानी कि अब सूरज निकलेगा भाई सुबह 9 बजे और गुरूब हो जाएगा शाम को 4 बजे। लेकिन कैसे? वो इस तरह से कि मैंने इसकी जो सोलर इनपुट है उसको मैंने इस टाइम के हिसाब से कंट्रोल कर लिया है। इसके अंदर सोलर की इनपुट जाएगी उस वक्त जब सूरज फुल पीक पे होगा, यानी कि सुबह 9 बजे, और जब सूरज
जैसे ही पीक से खत्म होने वाला होगा, यानी कि 3:30-4 बजे, उस वक्त सोलर की इनपुट जानी इसमें बंद हो जाएगी। तो जो सोलर की पीक टाइम है प्यारे दोस्तों, वो हम सिर्फ कंज्यूम करेंगे अपने सोलर इन्वर्टर में। इससे दोपहर को हमारा लोड भी चलेगा और साथ में बैटरी भी चार्ज होगी। और सुबह का जो टाइम है और इसके बाद शाम का जो टाइम है 4 से 7 बजे का, उस दौरान हम सिर्फ वापटा को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी बैटरी बिल्कुल भी कंज्यूम ना हो, बैटरी ड्रेन ना हो। और इस तरह से रात को अगर लाइट जाती है तो हमारा बैकअप जो है वो पूरे का पूरा सेफ रहेगा। अब यहाँ पर ये ज़हन में रखिए कि ये जो फार्मूला मैंने लगाया है ये सिर्फ उस केस में है जब आपको इन केस ऑफ लोड शेडिंग रात को बैकअप चाहिए, जब आप बैटरी को मुकम्मल जो है वो बैकअप के तौर पे सेफ रखना चाहते हैं हर टाइम के लिए। लेकिन अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए या आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती या फिर सर्दियों का मौसम है, आप दिन को कंप्लीटली सोलर और रात को कंप्लीटली बैटरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वापटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आपका मेन फोकस जो है वो बिजली के बिल को कंट्रोल करना है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। फिर उसमें ये होगा कि मैं इसको मैनुअली जो है यहाँ से ऑफ कर दूंगा। फाइनली दोस्तों अब बारी है कि हम अपने इस 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को ऑन करके इस पे लोड डाल के इसका थोड़ा सा तेल पानी जो है वो चेक कर लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी हमारे पास डाटा आ रहा है जी, वो सारे का सारा एट ए टाइम आपको शो हो रहा है, बैटरी का भी, सोलर का भी और ग्रिड की इनपुट का भी और साथ में आउटपुट का भी। यानी कि कोई भी बटन प्रेस करके आपको जो है वो वैल्यूज देखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ऊपर ब्रैकेट में आपको वैल्यूज हो रही हैं ये बैटरी की वैल्यूज हैं, यानी कि इस वक्त 13.2 वोल्ट जो है वो बैटरीज के हैं। इसी तरह से मोस्ट राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर सोलर की वैल्यूज हो रही हैं, जिनमें 31 वोल्ट जो है वो आपको सोलर के वोल्टेज नजर आ रहे हैं। नीचे 10.1 एम्पेयर सोलर से आने वाली करंट है और सोलर इस वक्त जितनी आउटपुट दे रहा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में आपको एसी आउटपुट के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, यानी कि जो सोलर इन्वर्टर आउट कर रहा है। और इसी तरह से मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपके यहाँ पर जो वापटा यानी कि ग्रिड की इनपुट है 224 वोल्ट वो आपको शो हो रहे हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ प्रेजेंट हैं, ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने जो इस सोलर इन्वर्टर की सेटिंग है वो SOL रखी हुई है और SOL के ऊपर दिन के टाइम पे सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से लोड चलता है, शाम को फिर जो है वो सिस्टम हमारा वापटा पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बैकअप के लिए हमने यहाँ पर इसको 224 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको लोड की डिटेल बताऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 363 वाट का जो लोड है वो इस वक्त सोलर इन्वर्टर के ऊपर ऑन किया है। 363 वाट का मतलब यह है कि इस वक्त इसमें तकरीबन 2 अदद सीलिंग फैन, एक पेडिस्टल फैन और इसके अलावा घर में जितना भी लाइटिंग लोड है, LED बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, वो सारी की सारी इस वक्त ऑन है। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम दिस सोलर इन्वर्टर स्पेसिफिक जो ये वाला मॉडल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं इसके सॉफ्टवेयर में मुझे कुछ इशू लग रहा है और मैंने कांटेक्ट भी किया है तो मुझे ये पता चला है जी कि पर्टिकुलर ये जो वेरॉन 1.2 इस वक्त मार्केट में आ रहा है इसके सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है जो कि अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं की। यानी कि मसला ये आ रहा है कि जो एक्चुअल में वैल्यूज इस वक्त आ रही हैं वो ये अपनी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं कर रहा, बल्कि ये कुछ अपनी नई दुनिया में जो है वो मगन है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर पैनल से जो हमारी करंट आ रही है टोटल इस वक्त जनरेट हो रही है हमारे इस लोड के मुताबिक, वो है तकरीबन 14.84 अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन 15 एम्पेयर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सोलर इन्वर्टर हमारा शो कर रहा है जी कितने, 9.9 एम्पेयर, यानी कि पूरे 6 एम्पेयर का जो है वो फर्क है। इसी तरह से वोल्टेज भी इस वक्त यहाँ पर मैंने चेक किए हैं, ऊपर जाकर तकरीबन 32 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट शो कर रहा है। इसी तरह बैटरी की जो इस वक्त करंट है वो है तकरीबन 1.33 एम्पेयर। लेकिन यहाँ पर आपको हैरत होगी कि सोलर इन्वर्टर शो कर रहा है जी 8 एम्पेयर। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इन्वर्टर काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, यानी कि इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इसके अलावा इसका जो बैटरी चार्जर है वो भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में इशू है। ये जो वैल्यूज बता रहा है ये गलत बता रहा है, जो कि एक बहुत ही समझें कि डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है। इतना बड़ा ब्रांड हो, इतनी बड़ी सोलर कंपनी हो पाकिस्तान की, और वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वर्किंग ना करे, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स ना करे और बगैर तैयारी के जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर ले, तो ये एक थोड़ी सी अफसोसनाक बात है। तो ये थोड़ा सा काइंडली इनके R&D डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि 31 वोल्ट के साथ मेरा क्लैम मीटर जो है वो तकरीबन 15.46 एम्पेयर जो करंट है वो शो कर रहा है, जिसके मुताबिक इस वक्त सोलर से आने वाली जो टोटल पावर है वो तकरीबन 480 वाट के करीब बनती है। लेकिन हैरत की बात है कि मुझे यहाँ पर कितनी शो हो रही है जी,
300 वाट, जो कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लैग है इस सोलर इन्वर्टर के अंदर, स्पेसिफिक इस मॉडल के अंदर। बहरहाल दोस्तों 720 वाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो सोलर पैनल्स की है, उसमें से हमें ये सोलर पैनल 480 वाट जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो 65 to 70% आउटपुट बनती है, जो कि मेरे ख्याल से एक मुनासिब एफिशिएंसी है सोलर पैनल्स की। जबकि इसकी जगह जो पहले PWM बेस्ड चार्ज कंट्रोलर वाला सोलर इन्वर्टर होमेज का लगा हुआ था, वो मैक्सिमम 720 वाट के सोलर पैनल में से सिर्फ 250 वाट जो है वो प्रोड्यूस कर पाता था। तो बहरहाल दोस्तों काम करने में ये सोलर इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है, वर्किंग बिल्कुल दे रहा है, आउटपुट भी सही दे रहा है, लोड भी सही पिक कर रहा है, बैटरी को भी सही चार्ज कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है, इसकी जो वैल्यूज है, उसमें फर्क आ रहा है। आप अपने क्लैम मीटर या बाकी इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज और नजर आएंगी जो एक्चुअल होंगी, लेकिन इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी गलत नजर आ सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं आपको इस पूरे सोलर सेटअप की कॉस्ट के बारे में बताऊं कि इसके ऊपर टोटल कितना खर्चा आया है, तो सबसे पहली चीज 32,500 रुपए का इस वक्त ये सोलर इन्वर्टर है जी, जो मार्केट में सेल हो रहा है, वेरॉन 1.2। इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं वो चूंकि मैंने आपको बताया है कि पहले से यहाँ पर इंस्टॉल्ड थे, लास्ट ईयर उनकी प्राइसेस 8,500 थी और आजकल जो है वो तकरीबन 10,000 या 10,500 के आसपास सेल हो रहा है। इसी तरह से जो बैटरी है TX 1800, जो कि अब TX 2500 के नाम से आती है, ये लास्ट ईयर 24,000 की थी और इस बार कुछ गवर्नमेंट की और कुछ बेचने वालों की मेहरबानी की वजह से कोई 32,000 में सेल करता है, कोई 30 में, कोई 31 में, समझेंगे जहां पे दाव लग जाए इनका। इसके अलावा इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी वायरिंग, इसके जो कंट्रोल पैनल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसके अंदर की एसेसरीज और ईच एंड एवरीथिंग मिला के अप्रोक्सीमेटली इस पूरे सेटअप के ऊपर जो कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, वो तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए के आसपास आई है। और इस 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर आप मैक्सिमम जो है वो अपने घर के 3-4 पंखे, घर की तमाम लाइटें, इसके अलावा आप एक अदद कंप्यूटर, और अगर आपकी बहुत कोई छोटे साइज का रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सारा लोड बंद कर दें तो आप एक इस्त्री भी जो है वो इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर रन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है मेरा, इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।